Hello students, welcome to my channel Concept of Physics. Here's a question related with the velocities and momentum. अभी मेरा यही चैप्टर चल रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम एंड सो ऑन. नाउ वी विल डील विद दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. ये है two bodies of the 100 grams and 200 grams in weight are moving in a straight line in a same direction with the velocities of 2 meter per second and 1 meter per second. It means this is m1 is equal to 10 gram, 100 grams. It is 100 grams, and another body in the same direction m2 of 200 grams. ठीक है? With the velocities of this, the velocity in this case is v1, body number 1. Velocity of the body number 1 is equal to 2 meter per second square, and v2 is equal to 2 meter, 1 meter per second. Okay? This is given to us. Okay. After the collision of the body of 100 grams become 1.67 meter per centimeter. The velocity of the body become 1.67. After the collision of the body, velocity of the body of 100 grams become 1.67 meter per second. It means they are moving in this direction. In the same straight line, in the same straight line, in the same direction. So this figure will be of this nature. ठीक है? And they collide. They get collide. It means this and this M1 body and M2 body, though they are moving in the same direction, even though they collide. क्योंकि एक की वेलोसिटी कम है, एक की वेलोसिटी ज्यादा है. जैसे आगे चलता हुआ बच्चा धीरे चल रहा है, पीछे बढ़ता हुआ ज्यादा स्पीड से आएगा, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो आपस में टकरा जाएंगे. सेम इज द कंडीशन over here. अच्छा, उसके बाद the body of 100 gram becomes velocity of the body of 100 grams become 1.67. It means this v2 dash after collision, v1 dash after collision, this become 1.67 meter per second square. Okay, it means m1 पता है हमें, अच्छा. What will the velocity of the second body? Second body की velocity क्या है? Let's suppose velocity v2 dash is the velocity of the second body of gram 200. ठीक है? ओके. इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड सिंपली द वेलोसिटी. तो p1 plus p2, this will be equal to p1 dash plus p2 dash, where p1 is the previous momentum of the body of 10 grams and p2 is the previous momentum of the body 200 grams, containing the velocity respectively 2 meter per second और 1 meter per second. 10 ग्राम की कोलिजन से पहले 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से चल रही थी, 200 ग्राम की 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से चल रही थी, तो उनका मोमेंटम P1 P2 था टक्कर से पहले. आफ्टर कोलिजन हमने मान लिया है इसकी वेलोसिटी V2 है, देन दिस P1 will be the momentum of first body of 100 grams जिसकी वेलोसिटी 1.67 होती है. तो V1 dash is given to us and V1 dash is given to us. V2 starting is given to us. V1 is to be find out. V2 dash is to be find out. वैल्यू रख देते हैं. तो ये 100 grams into P is equal to मोमेंटम इज इक्वल P into V होता है. तो V पहली वेलोसिटी किसकी है? इसकी 2 मीटर पर सेकंड. इसको ग्राम्स पर सेकंड में बदल दीजिए, चाहे ग्राम्स में है तो इसको किलोग्राम में बदल सकते हैं. ठीक है? अदरवाइज वो सब कैंसिल हो जाएगा. प्लस 200 दूसरे का ग्राम 200 है और वेलोसिटी कितनी है
1 है, वेलोसिटी 1 है, और ये 200 ग्राम्स को 1000 में डिवाइड कर दिया किलोग्राम में बनने के लिए. दिस विल बी इक्वल टू P1 m वही है 100/1000 kilograms into velocity after collision ये हो गई 1.67 meter per second plus V2 is to be find V2 dash is to be find out. M2 is given to us same 200 upon 100. Now this can be done. इसको इधर लेके आते हैं. 100,000 तो कैंसिल कर ही दें सबके, 1000 कैंसिल हो गए. ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 167 प्लस V2 डैश into 200. It means this will become in this side, this will be 233 V2 dash into 200. It means V2 dash, this will be equal to 233 upon 200 meter per second, that is 1.16 मीटर पर सेकंड. डिवाइड कर लीजिए 200 को 1.16 मीटर पर सेकंड. ओके, ये इसकी वेलोसिटी हो गई. क्वेश्चन है मोमेंटम गेट चेंज आफ्टर द कोलिजन. ठीक है, बिल्कुल सही, बिकॉज ऑफ द कोलिजन वेलोसिटी गेट चेंज. And direction of the velocity of the second body will be same because no direction has been changed. So that after collision, the velocity of the, you see that the velocity of the lighter body get reduced because it was previously moving with 2 meter per second. After collision 1.67, उसकी velocity कम हुई है, मोमेंटम में इसके कमी आई है, उसके मोमेंटम में बढ़ोतरी आएगी. तो जितना यह कम होगा, क्योंकि दोनों का एडिशन बराबर है, जितने मोमेंटम में इसमें इसके बॉडी के मोमेंटम में कमी आई, उतने उसके मोमेंटम में बढ़ोतरी हो गई. ये वो तेजी से चलने लगेगा. ठीक है, क्योंकि उसके टक्कर से उसको एक एनर्जी मिली. अब आप देखिए दूसरा, डायरेक्शन सेम है, अगर नेगेटिव होता तो डायरेक्शन रिवर्स कराता. क्वेश्चन दूसरा मैं ये पूछ रही हूँ, वेलोसिटी बिकॉज गोइंग टू चेंज ऑफ ईच एंड एवरी बॉडी, दूसरी बॉडी की, बड़ी वाली बॉडी की भी जो 200 ग्राम की और 100 ग्राम की, दोनों की वेलोसिटी बदल रही है. क्या काइनेटिक एनर्जी भी उसी अनुपात में बदलेगी जिस अनुपात से आपकी जिस उसमें पोटेंशियल बढ़ा है? जवाब दीजिए. काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, बड़े वाले की बढ़ेगी, छोटे वाले की घटेगी, क्योंकि वेलोसिटी इसकी बढ़ रही है, वेलोसिटी छोटी वाले की घट रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी, नेचुरल है. और उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है पहले से, क्योंकि पहले वेलोसिटी कितनी थी उसकी, पहले वेलोसिटी इसकी 1 मीटर थी, अब 1.6 हो गई, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है. कि पहले कितनी थी, 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब वही 1.16 सेंटीमीटर का, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है. तो इसकी इसी तरह पहले वाले की वेलोसिटी इसकी दो वाले की कितनी थी, ये थी 2 मीटर पर सेकंड 100 ग्राम की, और बाद में कितनी हो गई इसकी 1.67, तो इसकी घट रही है. ओके, तो इसका मतलब है छोटे वाले की वेलोसिटी कम हो रही है, बड़े वाले की वेलोसिटी बढ़ रही है. काइनेटिक एनर्जी बड़े वाले की बढ़ रही है, नहीं 200 ग्राम की बढ़ रही है, छोटे वाले की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है. क्या वो उसी अनुपात में होंगे जितने अनुपात से आपके संवेग इंपल्स बदला? नहीं, वो क्योंकि उसमें v स्क्वायर आता है, v स्क्वायर आता है, 1/2 का तो बात छोड़े, v स्क्वायर आता है. तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज there is a change in the velocity in both the bodies, and that is why the impulse get changed of both the bodies, and also the energy get changed, but the ratio will not be same as of potential or momentum. काइनेटिक एनर्जी के चेंज में वो वाली रेट नहीं होगी जो कि मोमेंटम की रेट की चेंज है. मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है.
कारण ये भी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, लेकिन इसमें स्क्वायर होता है, इसलिए इसकी चेंज की रेट ज्यादा होगी, चेंज ज्यादा अमाउंट से होगा इन कंपेरिजन टू मोमेंटम के चेंज के होने में. ओके, दिस इज टू बी नोटेड. समहाउ इट can be asked by you in examination, so that it should be noted by you. Thank for watching my video, and if you like it, please don't forget to like, subscribe, and give the comment on it. Give the thumbs up also. Okay, good luck. Thank you.